जो कहता है उसको मैंने ट्रस्ट करो। प्रोफेसर लोगों से तो जाए। थैंक यू। I bless you in the name of Jesus. Touch you. God will use it. परमेश्वर इसका इस्तेमाल करेगा। Like Solomon. सुलेमान के समान। God will give his wisdom. और परमेश्वर उसे बुद्धि देंगे। My daughter, मेरी बेटी, you are in a new track, और आप एक नए चलन में हैं। a new move. और एक नए चलन में, नए राह में तैयार हो जाइए। This year, इस साल I'm going to prepare you. मैं आपको तैयार करने जा रहा I हूँ। will give you revelation. मैं आपको प्रकाशन दूंगा। Read the word more. वचन बहुत ज्यादा पढ़िए। And next to next year, और अगले से अगले साल I will use you मैं आपको इस्तेमाल करूंगा। for the deliverance ministry. और छुटकारे की सेविकाई के लिए। The demons will come out. और दुष्टात्माएं बाहर निकल जाएंगी। And you pray. और जब आप प्रार्थना करेंगे, Father, I pray. Jesus, I bless you. God will bless this girl. परमेश्वर इस बेटी को आशीष देंगे She will be different. और वो बहुत अलग होगी। She will sit with the Lord वो प्रभु के साथ बैठेगी and praise Him. और उसकी स्तुति करेगी। This is a gift of God in your life. और आपके जीवन में एक प्रभु का तोहफा है। Don't be disappointed. और डिसअपॉइंट मत होइए, निराश मत होइए। God is going to bring more things in your life. परमेश्वर आपके जीवन में और चीजों को लाने जा रहा है। Oh, Jesus. He will be like a Joshua generation. और वह जोशुआ के समान होगा। Just need more prayer. और ज्यादा प्रार्थना कीजिए। He will be the next upcoming leader. और वो अगला एक आने वाला एक अगुवा होगा। But you as a parents must help him to grow in the fear of the Lord. और वो नतीजे कि आप इसे प्रभु के भय में और ज्यादा बढ़ाएंगे। My daughter, मेरी बेटी, I have given you my heart. मैंने अपना दिल तुझे दिया है। You understand me. तू मुझे समझती है। You are sensitive with my spirit. तू मेरे आत्मा के साथ बहुत गंभीर है। But लेकिन ignorance come in between. नजरअंदाज बीच में आ रहा है। Don't ignore him. उसे नजरअंदाज He has given you a very good gift. उसने आपको बहुत अच्छा तोहफा दिया है। You are sensitive to his spirit. वो आप उसके आत्मा के साथ बहुत ही गंभीर है। Just pray. सिर्फ प्रार्थना कीजिए। He will put 2,000 new tongues in your tongue. वो आपकी जुबान में 2000 नई भाषाओं को ले आएगा। Get ready तैयार हो जाइए। for receiving. तैयार से पा लीजिए। Jesus. Father, I pray. The demons trying to take your life. दुष्ट आत्माएं आपके जीवन को लेने की कोशिश कर रही हैं। Just like the spirit of Cain, तीन के आत्मा के समान। I command every demonic power and every witchcraft and every demonic attack come out of her life in the name of Jesus. Bless this girl. I break the bondage, set her free in Jesus' name. Your loss will turn to joy. आपके जो दुख है वो आनंद में बदल जाएंगे। The Lord is bringing for you. और प्रभु आपके ला रहे हैं। This year इस साल is going to do new things in और your वो life. आपके जीवन में नई चीजों को करने जा रहे हैं। Get ready. सिर्फ तैयार हो जाइए। My daughter, मेरी बेटी, don't worry about anything. किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए। He is with you. वो आपके साथ है। Love him more. उसे और ज्यादा प्रेम Don't करिए। look here and there. और इधर उधर मत देखिए। Just trust him more. सिर्फ उस पर और ज्यादा विश्वास He कीजिए। will bless you. वो आपको आशीष And देंगे। use you. आप इस्तेमाल करेंगे। My daughter, मेरी बेटी, he has taken you off the bed. उसने आपको उस गड्ढे से बाहर निकाला है। You will be like Hannah in his eyes. और आप उसकी दृष्टि में हन्ना के समान होंगी। He will hear all your prayers वो आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। and answer your और prayers. आपका प्रार्थना का जवाब You will देगा। live for Jesus. आप यीशु के लिए जिएंगी। Get ready for it. तैयार हो जाइए उसके लिए। My daughter, मेरी बेटी, you are like Maryam, आप मरियम के समान हैं, whom he delivered from 7 demons. जिसने उसे 7 दुष्ट आत्माओं से बाहर निकाला।
और छुटकारा दिया। You will walk with Jesus. अब यीशु के साथ चलेंगे। The joy of the Lord is going to come in your life. और जो प्रभु का आनंद है वो आपके जीवन में आएगा। And through you, और जो आप हैं it will come in your family और वो आपके परिवार में आएगा and to many people. और बहुत से लोगों में। Jesus. Let your heart not be troubled. और बीच में आपका हृदय व्याकुल ना हो। Not be troubled. व्याकुल ना हो। Oh, so much on you. और बहुत ज्यादा आपके ऊपर। God is saying, और परमेश्वर कहते हैं, my daughter, मेरी बेटी, come unto me. मेरे पास आ जाइए। I will give you the rest. मैं आपको विश्राम दूंगा। I am the way out of your problems. और मैं आपको अपनी परेशानी से बाहर निकालूंगा। Give me praise. Bless the Lord. Give her good health and a long life. Jesus. My daughter, मेरी बेटी, do not compromise. समझौता मत करिए। Listen his voice उसके आवाज को सुनिए। very carefully. बहुत ध्यान से। These days, और उन दिनों में sometimes कुछ समय the voice gets mixed to you. और कई बार वो आवाज आप में मिल जाती है। Listen it carefully. उसे ध्यान से सुनिए। And do only what pleases to him. और उसे वही करिए जो उसे खुश करता है। He will bless your family वो आपके परिवार को आशीष देगा। more and more. बहुत ज्यादा। And you will be reason for the blessing to और him. उस आशीष के लिए आप कारण होंगी। Jesus. Coming days. और आने वाले दिनों में The anointing is coming upon this life. ये उसके जीवन का है। My daughter मेरी बेटी is training you. वो आपका प्रशिक्षण देगा And it will go for some more time. और वो कुछ और समय में जाएगा At least 2 more years. और 2 साल के और He will train you वो more. आपको और ज्यादा प्रशिक्षण He will help you to know how to walk in His spirit. वो मदद करेगा आपकी कि आपको आप उसके आत्मा में कैसे चल सकें And you will know Him more. और आप फिर उसके बाद आप उसको और When जानेंगे you pray, जब आप प्रार्थना करेंगी demons will flee away. आत्माएं निकल जाएंगी और भागेंगी Bless in Jesus' name. Jesus in Jesus' name. Bless them in the name of Jesus. I pray for her. Sit with me. मेरे साथ बैठिए More. और ज्यादा I will bless you मैं आपको आशीष दूंगा and use you और आपका इस्तेमाल करूंगा for the glory. महिमा के लिए And you will see my glory. आप मेरी महिमा को देखेंगे My daughter, मेरी बेटी don't worry. किसी भी बात की चिंता मत Let your heart not be troubled. और नीचे आपके हृदय व्याकुल न हो You know what? क्या जानते हैं क्या God is with you परमेश्वर आपके साथ है all the time. हर समय He will never leave you. वो आपको कभी नहीं He छोड़ेंगे will never forsake वो you. आपको कभी नहीं त्यागेंगे And whatever you have lost, और जो कुछ आपने खो दिया है it will come to वो you आपके पास आएगा 10 times stronger. 10 गुना बढ़कर Just remember this. जब इसे याद रखिए Listen. My daughter, बेटी God is well pleased. परमेश्वर आपसे खुश है Given you a regular heart, और आप उसने आपको बहुत अच्छा कर दिया है but you are lacking sometimes in prayer. लेकिन कई बार आप प्रार्थनाओं में कम हो रही है टूट जा रही है Pray प्रार्थना कीजिए more. और ज्यादा You will see more blessings in your आप heart. अपने जीवन में और आशीषों को देखेंगी Bless you in the name of Jesus. No weapon formed against us shall prosper. Touch. Blessing, Lord. This is given by God. और ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है Help him to grow in the Lord. इससे प्रभु में बढ़ने की मदद कीजिए He will be a good worshipper. और एक अच्छा आराधना करने वाला हो Bless. God's anointing is upon him. परमेश्वर का अभिषेक इसके ऊपर है He has chosen him. और उसने उसे चुना है Help him to grow. इसे मदद कीजिए कि बढ़े He will be a very good deliverance minister. और एक बहुत अच्छा छुटकारा करने वाला सेवक होगा Bless him. I pray that every pain leave her body in Jesus' name. I pray that you bless this man. Hold his faith. Let your anointing go through. Touch him. Bless him and use him to your glory. Jesus. Believe in him. उस पर विश्वास कीजिए You are in the right place. आप सही जगह पर हैं This year और इस साल is a change in your house, और आपके परिवार में बदलाव होगी in your health. आपके सेहत में If you just pray यदि आप केवल प्रार्थना करें and take a day fast, और एक दिन का उपवास लें there is a change going to come in your और health. एक बदलाव आपके सेहत में आ जाएगा Bless him, Lord. God will use him. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे Get ready. तैयार हो चाहिए You are going to do something for the Lord. आप कुछ प्रभु के लिए कुछ करने जा रहे हैं He is cooking something for और वो the कुछ आपके लिए बना रहा है Father. Lord has chosen you. प्रभु ने आपको चुना है You will be a helper in His kingdom.
आप उसके राज्य में एक सहायता करने वाले होंगे। Always be ready. हमेशा तैयार रहिए। Always you will be ready आप हमेशा तैयार रहेंगे and energetic और बहुत ही उत्तेजित for रहेंगे the Lord. प्रभु के लिए। And God will bless you. और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। Your household, आपके परिवार को, He will raise you in your family. आपके परिवार में वो आपको उठाएंगे। Trust Him. उस पर विश्वास कीजिए। He has a better plan for you. उसके पास आपके लिए बेहतर योजना है। People like lot of things, they think that nothing will come good in your way. बहुत से लोग सोचते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी बेहतर चीज नहीं आएगी, But लेकिन He's bringing best for you. वो आपके लिए बेहतरीन ला रहे हैं। Get ready. तैयार हो The जाइए। problem is, जो परेशानी है, you should pray. आप प्रार्थना करें। You should have a desire. आपके पास प्रार्थना और इच्छा होनी चाहिए। Yes. Use the people. I pray that every pain be rebuked in the name of Jesus. Every demonic power, every witchcraft, I break it down in the name of Jesus, and I command everybody get out. Spirit of darkness and addiction, leave him. Jesus. Father, I pray. Give your heart to him, अपना दिल उसे दे दीजिए, only to him, सिर्फ उसको, and he will bless you. और वो आपको आशीष देंगे। You have a good heart, आपके पास एक अच्छा दिल है, but लेकिन divided into halves. और वो दिल दो भाग में बटा हुआ है। Give it to him. उसे ले लीजिए, Surrender to him. उसे समर्पित कर दीजिए। This is your day, ये आज आपका दिन है, and he will bless you. और वो आपको आशीष देंगे। He will make you a humble man. वो आपको एक दीन इंसान बनाएंगे। He will grow more. आप और ज्यादा बढ़ेंगे You will be fruitful tree. और आप एक फलवंत होंगे। क्या करना है? How to do it? कैसे करना है? 100%, Not 10%, 10% नहीं, not 20%, 30% नहीं, 100%. 100%। Obey him. उसकी आज्ञा मानिए, He will bless you. वो आपको आशीष He देंगे, will raise you वो again. आपको और फिर से And बढ़ाएंगे he will show you और वो आपको दिखाएंगे how to raise you. कैसे बढ़ना है। You are in training आप प्रशिक्षण में हैं for 3 years. 3 साल के लिए। God will train you. परमेश्वर आपको प्रशिक्षण देंगे, Your brain, आपके दिमाग को, your eyes, आपकी आंखों को, your ear, आपके कानों को, your tongue. आपकी जुबान को। You must believe him. आप उस पर विश्वास करना होगा। What you have is nothing. जो आपके पास है वो कुछ नहीं है, It is just the beginning. वो सिर्फ केवल शुरुआत है। But if you obey him, लेकिन यदि आप उसकी आज्ञा माने, the fire will flow. जब आग बहेगी, Just obey. सिर्फ उसकी आज्ञा मानिए। God's favor is so much upon your life. परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो आपके लिए बहुत ज्यादा है, So much. बहुत ज्यादा। It is not because of any prayers or anything. और एक किसी प्रार्थना और किसी भी चीजों के द्वारा नहीं है, It's because He loves you. ये केवल इसलिए कि वो आपसे प्रेम करता है, He loves your heart. वो आपके दिल से प्रेम करता है। Surrender to Him completely. पूरी रीति से उसके लिए समर्पित कर दीजिए, He will bless you. वो आपको आशीष देंगे। The days are coming जो दिन आ रहे हैं, when you will be like John आप यूहन्ना के समान होंगे, the Baptist, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान। preaching आप Him. प्रचार करते हो उसके बारे में, He is with you. और वो आपके साथ है। Control. नियंत्रण में, Control. नियंत्रण में आइए, Control. नियंत्रण में आइए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष देंगे। He's going to give you a good health and a long life. वो आपको एक अच्छी सेहत और एक लंबी उम्र देने जा रहे हैं। You will always rejoice in Him. आप हमेशा उसमें आनंदित होंगे, Don't worry about it. और किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। Yes, Lord. This year, और इस साल, He will start your training again. और वो आपके दिमाग को, He will start your training again. वो आपके प्रशिक्षण को दोबारा शुरू करेगा। He will see you. वो आपको देखेगा How faithful are you? कितना विश्वासी हो कि आप हैं।
And according to that, और उसी के द्वारा He will choose you for the better place. और वो आपको एक बेहतरीन जगह के लिए चुनेगा, But you must follow Him. लेकिन आप उसको आज्ञा मानना होगा। It all lies in the obedience. तो ये सब कुछ आज्ञाकारिता में है, And if you follow, और यदि आप आज्ञा माने you will see His mighty anointing upon you. और आप उसके सामर्थ्य अभिषेक को अपने ऊपर He will bless you आपको आशीष देंगे and fulfill all your needs और आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे in all your days. और आपके सारे कमियों को, And He is hearing all your prayers. और आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुन रहे You हैं। don't have to worry about किसी anything. बात की चिंता नहीं करनी है। You are faithful in आप His sight. विश्वासी होती हैं उसकी दृष्टि में, He will listen to you वो more. आपको और सुनेगा। Whosoever listen to your counsel, जो भी उसकी सलाह को सुनता है, whosoever listen to your जो counsel, भी आपकी सलाह को सुनेगा, will be blessed. वो आशीषित होगा। Jesus. My son, मेरे बेटे, turn to me मेरी ओर मुड़िए completely. पूरी रीति से। I have given you new life. मैंने आपको एक नया जीवन दिया है। You were forsaken, आप त्याग दिए गए थे, you were left, आप छोड़ दिए गए थे, but I have taken you. लेकिन मैंने आपको निकाला है। Get ready तैयार हो जाइए for your dance. अपने दिलों के लिए। Do not worry about the world. संसार के लिए चिंता मत कीजिए। The world will pass away, संसार चला जाएगा, and things in the world will pass ये away. संसार की चीजें हैं वो चली जाएंगी, But the word of God लेकिन परमेश्वर का वचन will be established forever. वो हमेशा के लिए बना रहेगा। My son, मेरे बेटे, come to me. मेरे पास आइए, Don't be worried. चिंता मत कीजिए, I am in control. मैं नियंत्रण में हूँ। Come to me. मेरे पास आइए, I will fulfill everything. मैं सब कुछ पूरा करूंगा। She will face the problems in her younger age. वो अपनी जवानी में कुछ परेशानियों का सामना करेगी, But लेकिन because of the righteousness, धार्मिकता के कारण God will save her परमेश्वर से बचाएगा and stand her और उसे खड़ा करेगा and use her और उसे इस्तेमाल करेगा for His glory. अपनी महिमा, उसकी महिमा के लिए। The days are और जो coming दिन आ रहे हैं and she will sing for the जब Lord वो प्रभु के लिए गाएगी and she will be an active leader और वो एक बहुत ही उत्तेजित अगुवा हो बनेगी in His church. अपनी उसकी कलीसिया में। But लेकिन there are things which have to be taken care by parents. लेकिन वो बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें हैं जो नियंत्रण लेने की आवश्यकता है। I see that anointing moving upon her. और अभिषेक को इसके ऊपर बहते हुए देखता हूँ। My son, मेरे बेटे, I have given you a new life, मैंने आपको एक नया जीवन दिया a है, new hope, एक नई आशा, taken you out आपको बाहर निकाला है from old life. पुराने जीवन से। Don't worry about anything. किसी भी बात की चिंता मत The कीजिए। only thing you must take care of is सिर्फ एक बात है जिसके लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। no turning back, कोई पीछे मुड़ना नहीं, no turning back. पीछे मुड़ना नहीं, And don't take any steps in emotions. और अपने भावनाओं में होकर अपने कदम को मत बढ़ाइए। Always कभी भी pray. हमेशा He प्रार्थना will show you. वो आपको दिखाएंगे, He will show you. वो आपको दिखाएंगे, He will bless you. वो आपको आशीष देंगे। There are days going to come. वो ऐसे दिन आने जा रहे हैं, If you will be faithful यदि आप विश्वासियों के लिए to the servant, और दास के लिए God will use you यीशु आपको इस्तेमाल करेंगे and walk with you और आपके साथ चलेंगे like Moses. और मूसा के समान। See, this is glorious. और इसे देखिए, महिमामय है, It is और ये glorious. महिमामय है। It's gonna walk with you वो आपके साथ चले जा and रहे show हैं, you. वो आपको दिखाएंगे You will a seeing kind of prophet. और एक आप देखने वाले भविष्यवक्ता बनेंगे। You will see things आप चीजों को देखेंगे and you will tell people. और आप लोगों को बताएंगे The anointing is going to come. और अभिषेक आने जा रहा है। Jesus, we give you praise, we give you praise, we give you praise, we give you praise. As I said, और जैसे मैंने कहा था, the sorrows are over. और जो दुख के दिन है वो खत्म हो गए It's हैं going to multiply. और वो अब बढ़ाने जा रहा है आपको। My daughter, मेरी बेटी, but remember, याद रखिए, you are in training. आप प्रशिक्षण में हैं। He will guide you more वो आपको और ज्यादा तैयार करेगा towards the perfection.
और पूर्णता की ओर towards the perfection. और संपूर्ण पूर्णता की It ओर। will take time, और कुछ समय लेगा, but लेकिन you will see His glory. लेकिन आप उसकी महिमा को देखेंगे, You will be close to Him, आप उससे करीब होंगे and your heart और आपका दिल will be like the heart of Mary तो आपका दिल मरियम के दिल के समान होगा towards Jesus, यीशु के लिए loving Him, और उसके लिए प्रेम, clear to Him. साफ उसके लिए साफ। The time will come और एक समय आएगा when people may offend, जब लोग आपसे आपका विरोध करेंगे, but लेकिन God will walk with you. परमेश्वर आपके साथ चलेंगे। Walk in His purity. उसकी शुद्धता में चलिए Do not focus much on what you are going through. और इस पे ध्यान मत इसलिए इस पे ध्यान मत कीजिए कि जिससे आप गुजर रही It was हैं। mere a test. और इससे एक प्रशिक्षण था और एक परख था। Just get ready इससे तैयार हो जाए for your blessing. अपनी आशीषों के लिए। You will be close to Him आप उससे करीब होंगे more than you ever thought. और कभी जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। Jesus, my daughter, मेरी बेटी, I have given you my promises. मैंने अपने वादे तुझको दिए हैं, I have told you everything. मैंने तुझे सब कुछ बताया है। That will come to the fulfillment, और वो पूरा होगा, but it all lies in the obedience. लेकिन सब कुछ आगे कार्यता में निर्भर करता है। My daughter, मेरी बेटी, your promises अब तेरे वादे doesn't speak from your actions. वो आपकी क्रिया से नहीं बोलते हैं, It doesn't speak from what you're doing. वो इससे नहीं बोलते जो आप कर रहे हैं। The Spirit of the Lord, God has talked to you through a different prophet some years ago. क्या जानते हैं प्रभु के दास ने प्रभु के भविष्यवक्ता ने कुछ साल पहले आपसे बात की थी, अलग-अलग भविष्यवक्ताओं से बात की थी And He told you और उसने आपसे कहा था what to work upon. किन चीजों पे कार्य करना है, But the demon लेकिन दुष्ट आत्माएं trying to take you away. आपको निकालने की कोशिश कर रही हैं। You don't know what they are preparing for you. आप नहीं जानते कि वो आपके लिए क्या बना रहा है That's what they do. और वही वो करते हैं, A trap एक जाल for the people, लोगों के लिए those who love Him. जो उससे प्रेम करते हैं। You are ignorant. आप नजरअंदाज किए हुए हैं, You are ignorant the way you are walking. आप नजरअंदाज किए गए हैं जैसे आप चल रहे हैं। Let your action lies with your word. और दीजिए कि Eyes lies with your word. और दीजिए कि आपकी जो क्रियाएं हैं वो आपके काम के साथ चले। My daughter, मेरी बेटी, listen to this. इसे सुनिए And now you will feel Him. और अब उसे आप महसूस करेंगे। He knows everything. वो सब कुछ जानता है He alone is God. और वो इकलौता परमेश्वर है। Your promises are blocked आपके वादे रुक गए हैं because of your ignorance. आपके नजरअंदाज के कारण, And ignorance grieves the Spirit of the Lord. और नजरअंदाज परमेश्वर के आत्मा को दुख पहुंचाता है। Never be ignorant कभी भी नजरअंदाज मत करिए। in His church, उसके कलीसिया में, in your house, अपने घर में, in your life, अपने जीवन में, in your family, अपने परिवार में in every area of your life. और अपने किसी भी हर क्षेत्र में अपने जीवन के। If you come back, और यदि आप वापस आए, the Lord is showing me प्रभु मुझे दिखा रहे हैं the promises are still waiting for और वो वादे अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं, you. Still waiting for you. अभी भी आपका इंतजार कर रहे He हैं। has chosen you उन्होंने आपको चुना है to do something कुछ करने के लिए, great, महान, but लेकिन come back. वापस आए। My son, मेरी बेटी, the devil wants to take you away. शैतान आपको बाहर ले जाना चाहता है। He doesn't want you to involve with Jesus. वो ये नहीं चाहता कि आप यीशु के साथ मिले रहें। The old demons जो पुरानी दुष्ट आत्माएं which has gone away, जो चली गई थी,
is trying to come back वो वापस आने की कोशिश कर रही हैं and take you away. और वो आपको लेके जाने की कोशिश They कर want रही to है। kill your interest वो आपकी इच्छा को मारना चाहती हैं for Jesus. यीशु के लिए। My son, मेरे बेटे, you must fast and pray आपको जरूरत है कि आपको उपवास लेकर प्रार्थना for करें 3 days. 3 दिन के लिए, And that will be a breakthrough for you. और वो आपके लिए एक छुटकारा का दिन होगा, छुटकारा होगा। Lot of things is happening around you. बहुत सारी चीजें आपके आसपास हो रही हैं, You must pray. आपको प्रार्थना करनी And है। know one thing, और एक बात की याद रखिए, God has not chosen you to be anybody. परमेश्वर ने आपको कोई भी होने के लिए नहीं चुना है। I don't know who planned what or what you planned. मैं नहीं जानता कि किसने योजना बनाई और आपने क्या योजना बनाई, But लेकिन wherever you will be, और जहाँ कहीं भी आप होंगे, you will serve Him. आप उसकी सेवा करेंगे। You are like Moses, आप मूसा के समान हैं, telling him, उसे बताते कहते हुए, Lord, प्रभु I am incapable. मैं अयोग्य हूँ, I am not able. मैं योग्य नहीं I am हूँ, not worthy. मैं योग्य नहीं हूँ। But God is also very adamant. लेकिन परमेश्वर बहुत जिद्दी है, He wants to use only Moses. वो केवल मूसा का इस्तेमाल करना चाहता You है। see, His presence is glorious. कि आप देख सकते हो उपस्थिति बहुत ही महिमामय है। Lot of things बहुत सी चीजें waiting for her. इसके लिए इंतजार कर रही हैं। Days will come. वो दिन आएंगे, She will rise वो बढ़ेगी in my holiness मेरी पवित्रता में and walk और चलेगी with me. मेरे साथ। The demons are against her, जो दुष्ट आत्मा है उसके विरोध में है, but लेकिन God has sent His angelic protection for her. परमेश्वर ने स्वर्गदूत की सुरक्षा इसलिए भेज दी है। Thank you, Jesus. Spend time with Him more. इस नाम का और ज्यादा समय बिताएं। More. और You are a chosen vessel. आप एक चुने हुए पात्र हैं। Tune yourself more. अपने आप को उसके साथ और घुल मिलाइए, More. और साथ। It is coming now. और वो आ रहा है It has started, और उसने शुरुआत कर दी है, but it will take time. लेकिन कुछ समय लेगा। Once you are tuned in, एक बार उसके साथ आपकी धुन मिल गई, you will be a revival preacher. आप एक जागृति जागृति लाने वाले प्रचारक बनेंगे। A revival preacher. एक जागृति लाने वाले प्रचारक। Remember this verse. इस क्वेश्चन को याद रखिए, Just go on. सिर्फ चलते रहिए। You're going good, आप अच्छे चल रही हैं, but tune in. लेकिन और धुन मिलाइए। Set your mind check. अपने दिमाग के धुन को मिलाइए। It has come 30%, और ये 30% आया है 70% more. और 70% मेरे भवन में शैमुल के समान। God is giving you a wonderful promise. परमेश्वर आपको एक बहुत ही अद्भुत वादा दे रहे हैं। No prayers of yours will ever fall down. आपकी कोई भी प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाएगी। Amazing. You see His presence. आप इसको उपस्थिति को देखते हैं। Whenever you open your mouth, जब भी हम अपने जुबान को खोलेंगे, pray for anything, किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करेंगे, God will hear your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे Through your prayers, और आपकी प्रार्थनाओं के जरिए many will be saved. बहुत से बचाए जाएंगे, Many miracles will take place. बहुत अद्भुत काम होंगे। You will see from your own eyes. आप अपनी आंखों से उसे देखेंगे। My daughter, मेरी बेटी, He has given you a breakthrough उसने आपको एक छुटकारा दिया है to come back. वापस आने के लिए। This year, ये 7 साल give yourself to Him more. अपने आप को और ज्यादा उसे दे दीजिए। You will see a change in your job. आप अपने काम में एक बदलाव को देखेंगे, You will see change in your house. अपने परिवार में एक बदलाव को देखेंगे। Pray to Him उससे प्रार्थना कीजिए and be more faithful. और उसके लिए और ज्यादा विश्वासी हो जाइए All of your days, और अपने सारे दिनों में you will see His blessings. आप उसके आशीषों को देखेंगे You don't have to suffer for anything. और आप किसी भी चीज के लिए गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। He has touched you, उसने यहाँ को छुआ है and that is enough. और यही काफी है। The calling is near to you. और जो बुलाहट है वो आपके पास है। Keep growing the way you are going.
और जैसे आप जा रहे हैं वैसे ही चलते रहिए। He loves your holiness, अपने पवित्रता को बरकरार रखिए and He even loves your faithfulness and truthfulness that you maintain in hidden places. और वो अपने विश्वास योग्यता से प्रसन्न है जो अपने गुप्त स्थानों में उसके साथ है। वो आपकी विश्वास योग्यता और सच्चाई से प्रसन्न है जो आप अकेले में छुपे हुए स्थान पे भी बरकरार रखते हैं। He knows that you are His vessel. आप जानते हैं कि आप उसके चुने हुए पात्र हैं। He knows that. वो जानते हैं कि आप उसके चुने हुए पात्र हैं। It's going to fill you more. वो आपको और ज्यादा भरने जा रहे The हैं। time is going to come. एक ऐसा समय आने जा रहा है This year, और इस साल you are going to overflow, आप उमड़ने जा रही हैं and people और लोग will receive the overflow. और वो आपके उमड़ने को ग्रहण करेंगे। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम। Knowing what is good is not sufficient. और ये जानना कि क्या अच्छा है ये काफी नहीं है। Doing is important, my son. मेरे बेटे करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। You are a chosen vessel, आप एक चुने हुए पात्र हैं, but लेकिन let not your mind fly away. और ऐसा ना होने कि आपका दिमाग इधर उधर उड़े। The old nature पुराना स्वभाव is trying to take its place in your life वो आपके जीवन में अपने स्थान को लेने की कोशिश कर रहा है over and over. बार बार। There is a force और ये एक बल है which make you helpless, जो आपको मजबूर कर देता and है you don't know what you're supposed to do, और आप ये नहीं जानते कि आपको क्या करना चाहिए and leading to the foolish ways sometimes. और ऐसा कई बार होता है कि वो मूर्खता वाली बातों को जन्म देता है। My son, मेरे बेटे separate yourself, अपने आप को अलग कर दीजिए, consecrate yourself, अपने आप को शुद्ध कीजिए and God will use you like Joshua. और परमेश्वर आपको यहोशू के समान इस्तेमाल करेंगे। But लेकिन you must consecrate आपके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को शुद्ध करें completely, पूरी तौर से। and you know what you mean. और आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। Even the old thoughts, यहाँ तक कि पुराने विचार the past life और पुराना जीवन trying to impress on you. वो आपके ऊपर प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहा है। Pray more, ज्यादा प्रार्थना